सो कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं, इन इमेजेस को देखने के लिए हमको रे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। रे डायग्राम्स 3 रूल को फॉलो करके बनाए जाते हैं, विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 120. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. Rule number 1: if an incident ray parallel to the principal axis, if it comes parallel to the principal axis, after reflection it will pass through principal focus. यानी अगर ऑब्जेक्ट से पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर जा रही हो, रिफ्लेक्शन के बाद तो फोकस से पास होगी. सेकेंड रूल: if an incident ray passes through the principal focus, after reflection it will pass through principal axis, parallel to principal axis pass होगी वो. And third rule: if an incident ray passes through the center of the curvature, after reflection it will use the same path. Then ये तीनों चीजें नीचे डायग्राम में भी शो की है. रूल नंबर 1: इंसिडेंट रे ब्लू कलर की, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस एफ, पिंक कलर की हो गई है. सेकेंड रूल: इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस will parallel to principal axis. And third, rule 3, it shows if incidence ray comes from center of curvature, it will pass through again center of curvature. Okay, now let us see the same condition, the 6 different places of the object on principal axis with the help of concave mirror. Okay, I'm sharing my screen with you and let us see again from there. Now tell me, आप सब लोगों को एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. I'm making it zoom. Now, position of the object is given in first column. Second column is given a position of image, and third column is given as nature of the image. Directly see from here. If the object is placed at infinity, infinity means beyond the C. This is C. इस C से बहुत दूर अगर कोई object हो, तो उससे आने वाली जो light rays रहेंगी, we can consider that this one first and second. ठीक है, ये जो सेंट्रल लाइन दिखाई दे रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसमें दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल ऑफ द मिरर. देन so two rays if coming parallel to the principal axis, this after reflection it is come passing from focus. Another one more ray that also coming from object and which is parallel to this principal axis, after reflection it is also going through focus. So focus is the place जहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है. एंड ये दोनों रेस जिस प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी दैट इज जस्ट अ पॉइंट. ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी फोकस. द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. नाउ साइज देखो कैसा होगा, इट विल बी डिमिनिश्ड, बिल्कुल डॉट के जैसा होगा, मतलब दिखाई ही नहीं देगा. इट विल बी अ रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड विल बी डिमिनिश्ड. बिल्कुल डिम होगा एंड बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा. द सेकंड कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मींस सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखा हो, तो क्या होगा? लेट अस टेक टू रेज कमिंग फ्रॉम दैट. फर्स्ट इज parallel to principal axis, will pass through focus. Another we can take a ray that is passing coming from focus and going from parallel axis, parallel to the principal axis. ठीक है, now ये दोनों rays जिस point पर मिल रही हैं, that will be A जो image object का A part है उसका A dash बना रहे हैं. That means जो B part है will come here and see the image. ठीक, आप इस इमेज की पोजीशन देखो कहां पर बन रही है. दिस इज बिटवीन फोकस एंड सी. देन बिटवीन फोकस एंड सी द साइज, इट इज रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, एंड डिमिनिश्ड है, जो साइज है वो अभी भी छोटा है. देन 30, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सी, देन if it is at C, then again two rays
first parallel to principal axis after reflection going from F. Another ray coming from F and going from parallel line, and it will intersect here and will make A dash. So the image, see this image, B dash B, B dash A dash is the image of object BA. Done. Now see its nature, its place, position देख लो, C पर ही बना हुआ है, object is placed at C, image will be at C only, and its nature will be, it is real, inverted, and the same size as of the object. Done. Now another condition, if object is placed between focus and C. Okay, let us consider this object. It's placed between focus and this is C. Now our object is A, B. Okay. Now यहाँ से हम एक रे ले सकते हैं रूल नंबर 1 की, that is coming parallel to the principal axis and going from focus. Done. दूसरी, यहाँ से हम कोई एक ऐसी रे नहीं ले सकते जो अगेन पैरेलल जाती हो या सी से जाती हो, बिकॉज सी इस ऑब्जेक्ट के पीछे है. सो हमको रूल नंबर 2 ही लेना पड़ेगा, रे कमिंग फ्रॉम फोकस एंड गोइंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. डन. सो नाउ द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट is between C and F. The place of the image is beyond C. C के पीछे बना हुआ है. And see the nature. It is real one. दिखाई दे रहा है. Inverted है, उल्टा है, and enlarged है. Is it clear? Okay. Now another position. See. Now next is, suppose it is at focus. If the object is placed at focus, let's see what happens. Again, first ray from A, parallel to principal axis, will go from focus. Now, यहाँ से अब हम ऐसी रे सेकेंड रूल नहीं ले सकते कि जिसमें रे फोकस से जाती हो पैरेलल हो जाती हो. So we need the rule number 3, the third ray that is coming from C. C से ले सकते हैं. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको देखो, ये डायरेक्टली यहां से पास हो रही है कर्वेचर से. ठीक है. इसीलिए इसका जो डायग्राम है, इसका जो इमेज है, ये हम इस एक्सिस पर यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्चुअल में इसका जो इमेज होगा वो बहुत दूर बनेगा एट इंफिनिटी. बिकॉज हम ये लाइंस कहाँ मैच करेंगे हम नहीं जानते, बहुत लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. डन. Therefore, the place of the image will be at infinity. It will be a real one, it will be inverted one, and highly enlarged. Okay. Last case, if the object is placed between F and P, that means focus and pole के बीच में रखा हो. See this object बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है. AB is the object. अब इसमें हम जो रे ले सकते हैं वो रे में से एक रे है रूल नंबर 1 की, पैरेलल आती है एंड फोकस से पास होती हो, वो हमको डॉटेड लाइन से शो करनी पड़ेगी. एंड सेकंड जो है ये कर्वेचर से आती हुई है एंड यहाँ से वापस जाती है. सो इन इस केस में भी जो इमेज बनेगा, एक्चुअली यहाँ से ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए ये लाइंस आपको मिरर के इस एक फेस की तरफ नहीं दिखाई देंगी, ये बनेंगी यहाँ से. अगर इस लाइन को डॉटेड लाइन के केस में पीछे की तरफ अगर हम इसको एनलार्ज करें, पीछे की तरफ इन डॉटेड लाइंस को मैच करें, तो ये इस प्लेस पर मिरर के पीछे बनती है. या आप मिरर के सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन इसका इमेज मिरर के पीछे बनता है. नाउ सीधा बनता है. ठीक है. इरेक्ट है. सिर्फ ये एक केस है जिसमें कनकेव मिरर में इमेज सीधा बन रहा है, लेकिन वर्चुअल है, रियल नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिला हुआ है. इट्स अ वर्चुअल इमेज. इट इज एनलार्ज. सी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज. सो इट इज एनलार्ज इरेक्ट इमेज मेड at this place. ठीक है. So these are the different condition again given in on page number here on 122 in your textbook. ठीक है. सबको अच्छे से समझ में आया? स्क्रीन दिखाई दे रहा था प्रॉपरली? दिख रहा था? ओके. नाउ अगेन
let's see what is the meaning of divergent and convergent on page number 123. Image formed by convex mirror. Let's see first वो देख लेते हैं. Okay, let me share the screen again. हाँ, convex mirror में it is said that कि convex mirror में आप कहीं भी किसी भी प्लेस पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो इमेज बनती है ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. ठीक है, इमेज आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस करो, इन्फिनिटी पे रखो या पास में रखो या फोकस पर रखो. हाँ, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है. ठीक है, इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, बहुत बड़ी होती है, enlarged होती है and always virtual होती है. ठीक है, and now see the meaning of divergent and convergent on page number 123. पेपर में आपको जो पूछा जाता है वो ये कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर को डाइवर्जेंट मिरर एंड कॉन्वर्जेंट मिरर्स क्यों कहते हैं. ठीक है, सी दिस. अगर मैथ स्टिक्स के हम दो तरह के पैटर्न्स देखें तो मैथ स्टिक्स से बने हुए ये दो तरह के पैटर्न विच आर गिवन ऑन 11.13 डायग्राम. सी, एक में ऐसा लगता है, जो फर्स्ट डायग्राम दिया है उसमें ऐसा लगता है कि जो रेज हैं, द रेड हेड ऑफ द मैथ स्टिक, लाल कलर के जो हेड है वो ये शो कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है वो एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है. एंड सेकंड वाले में ये दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो किसी एक प्लेस पर फोकस हो रही है. ठीक है, सो जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर फोकसिंग मिरर कहलाता है, बिकॉज कॉन्केव मिरर में जो पैरेलल लाइट आती है वो पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस पर आकर मिलती है. ठीक है, इसलिए कॉन्केव मिरर फोकसिंग मिरर कहलाता है. and therefore it is called as convergent mirror. Okay, last paragraph of 123, mark karo आप. A concave mirror is also called a focusing mirror because बाकी सारी चीजें कट कर देना बीच से, because a parallel ray get focused after reflection in this mirror and the size of the image produced by these mirrors can be large or smaller than the object depending upon the position. ठीक है, turn the page. Next page. कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है. सी, डायग्राम नंबर 11.14 इज मोर क्लियर. जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें देखो जितनी ब्लू कलर की पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिल रही हैं, दिख रही है पिंक कलर की, फोकस पर आकर एक जगह मिल रही है ना, इसलिए फोकसिंग मिरर कहलाता है. कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है ये कॉन्केव मिरर. ऑपोजिट टू इट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, नीचे वाला डायग्राम देखो 11.14, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज जो ब्लू कलर की आ रही हैं पैरेलल ही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद देखो किसी एक जगह पर मिल नहीं रही है. रिफ्लेक्शन के बाद जो पिंक कलर की रेज हैं वो फैल रही हैं. ठीक है, डाइवर्ज हो रही हैं. उनको अगर एक जगह पे मिलाना हो तो वो मिरर के पीछे मिलानी पड़ती है डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके. ठीक है ना, सो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. इसकी डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 122, मार्क इट. A convex mirror is also called as dispersing mirror. Diverging but dispersing mirror, disperse करना मतलब फैलाने वाला. This is because, बाकी सारी चीजें कट करो, as shown in figure वगैरह जो लिखा है उसको काटो. This is because parallel incident rays get dispersed after reflection in this mirror. The size of the image produced by these mirrors
is always smaller than that of the object. ठीक है? So अगर हमेशा इमेज स्मॉलर बन रही हो तो यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस गिवन मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. इमेज छोटे बड़े उल्टे और सीधे दोनों बन रहे हो तो मिरर विल बी अ कॉन्केव मिरर. ठीक है? Now important mark करो page number 125, that is uses of concave mirrors. See, concave mirrors के यूज ज्यादा होते हैं क्योंकि concave mirrors जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग डिस्टेंस पर अगर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज अलग अलग बनती है. देखा अभी हमने रे डायग्राम में, है ना? तो इसके यूजेस भी इसीलिए इतनी वैरायटीज के होते हैं. बार्बर शॉप, डेंटल क्लिनिक, इन सब जगह पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल एंड फोकस के बीच में रखा होता है. तो पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होती है, सीधी इमेज बनती है. मिरर के पीछे बनती है ना, ठीक है? तो उस इमेज को हमको स्क्रीन पे नहीं लेना पड़ता, मिरर पर ही दिखाई देती. तो मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही हो तो हमको मिरर में वही चीज दिखाई देने लगेगी. बिकॉज प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े रहते हैं तो हमको इमेज हमको मिरर में ही दिखती है ना. एक्चुअली वो इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे बनती है, स्क्रीन पर नहीं होती है. स्क्रीन पर इमेज कब बनेगी कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे सामने एक मिरर है और उसकी इमेज यहीं पर इसी लाइन में इधर बन रही है. क्लियर? आप अपने आप को ही देखो, आप कैमरे में देख रहे हो तो कैमरे में देख रहे हो तो अगर आपको चेहरा आपका कैमरे के अंदर ही दिखाई देने लगे सेल्फी वाले मोड में, तो वो जो इमेज है दैट इज एक्चुअली मेड, उसके अंदर जो आप एक्चुअली कैमरा जो आप सेल्फी का देखेंगे उसमें तो लेंस है. लेकिन इमेजिन करो आप अपना चेहरा जब प्लेन मिरर में देखते हो, ठीक है, तो क्या मिरर के अंदर सच में वो लड़की खड़ी होती है क्या? आप सच में मिरर के अंदर गए हुए होते हो क्या? नहीं, वो आपका सिर्फ इमेज दिखता है. एंड वो इमेज एक्चुअली आपका अगर रियल इमेज दिखना चाहिए था तो कब कहाँ दिखना चाहिए था मालूम है? मिरर, फिर आप, एंड उसके बाद उसके पीछे अगर कोई व्हाइट कलर का पर्दा लगा हो और वहां पर आपका इमेज दिखता हो तो वो इमेज रियल इमेज कहलाता है. मिरर रखा है सामने, इस मिरर के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है एंड ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ कहीं स्क्रीन रखी हो, ठीक है, यहाँ कहीं स्क्रीन रखी हो और उस पर अगर उसका इमेज बनता हो तो वो रियल इमेज होता है. यहाँ पर कंडीशन क्या है? दिस इज मिरर, दिस इज यू. अगर आप इधर खड़े हैं और आपका इमेज यही आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली वो बना यहाँ पर पीछे है. डन? एंड पीछे बना है तो वो इमेज रियल इमेज नहीं होता, वर्चुअल इमेज होता है. डन? एंड इसीलिए डेंटिस्ट एंड बार्बर्स कटिंग करने के लिए आपको अच्छे से आपकी शेविंग हुई है कि नहीं, बाल अच्छे से प्रॉपर्ली कटे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए डेंटिस्ट लोग जो मिरर यूज करते हैं वो प्रॉपर्ली अंदर की जैसे दिखाई देने के लिए, एनलार्ज करके दिखने के लिए और मिरर के अंदर ही उनको दिखाई दे, ऐसा करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल एंड फोकस के बीच में ऐसा सेट करते हैं कि वो एनलार्ज करके चीजें दिखाई देती है. क्योंकि उस समय अंदर जो इमेज बनती है दैट इज एक्चुअली इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग होती है. जो लास्ट केस अभी हमने देखा कॉन्केव मिरर के केस का. ठीक है? सेकेंड यूज ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, लेट अस सी. टॉर्चेस इन हेडलैम्प ऑफ व्हीकल्स. आपकी गाड़ियों के जितने भी लैंप होते हैं एंड टॉर्चेस होते हैं, उसमें देखा है ना, लैंप जब जलता है तो उसकी लाइट देखो कैसे ऐसे फैल जाती है, फैलती है, बीम आती है ना. हाँ, एंड कई बार देखना गाड़ियों की लाइट जब हम ऊपर करते हैं, अपर लाइट चालू करते हैं तो कैसे एकदम स्ट्रेट बीम आके गिरती है ना. सो दिस इज बिकॉज कि जो मिरर्स हम टॉर्चेस में एंड गाड़ियों के हेडलैम्प में लगाते हैं, यहाँ पर जो फोकस होता है, जो मिरर का जो फोकस होता है उस पर वो लैंप लगाया हुआ होता है. एंड फोकस पर लैंप लगाने के कारण क्या होता है, जितनी भी लाइट आती है फोकस से होके निकलती है, इसलिए वो लाइट बीम सीधी स्ट्रेट बड़ी बीम डालती है तो हमको ज्यादा रोशनी दिखाई देती है रिफ्लेक्शन के बाद. ठीक? देन फ्लड लाइट्स. फ्लड लाइट्स होती है, ये जो फ्लड लाइट्स होती है, बड़े बड़े जो ऊपर क्रिकेट मैच के टाइम पे बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं, हमारे यहाँ भी कई स्क्वायर्स पर आप देखना बहुत बड़ा एक पोल लगा हुआ होता है, उस पर चारों तरफ लैंप लगे होते हैं. ठीक है? उनको फ्लड लैंप्स बोलते हैं. ये जो फ्लड लाइट्स होती है ना,
ये इस तरह से क्रॉस होके एक दूसरे के ऊपर से लाइट रेस फेंकते हैं कि आपको उस नीचे जो आदमी खड़ा है ना उसका बहुत जल्दी परछाई नहीं दिखाई देती है। डे नाइट क्रिकेट में आपने देखा है ना, नहीं तो लाइट चालू करके अगर आप क्रिकेट या कोई गेम खेलो आपको शेडो का प्रॉब्लम आता है, लेकिन फ्लड लाइट्स में ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देयरफॉर बहुत ब्राइट बीम आती है, फैल के आती है, एंड इट इज यूजफुल टू सी मोर एरियाज। ठीक, बड़े एरियाज में लाइट को फ्लड करने के लिए उसको फेंका जाता है। देन सोलार एनर्जी में यूज होने वाले जो मिरर्स होते हैं, ये मिरर्स भी फोकस करने के लिए लगे जाते हैं ताकि जितनी भी पैरेलल सनलाइट मैक्सिमम कवर करें और उसको फोकस करके एक जगह पर रखें ताकि मैक्सिमम हीट सोलार कुकर को या किसी सोलार इक्विपमेंट को दिए जा सके। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसके यूज किया जाता है साइड के, आपकी गाड़ी के एंड कार के जो मिरर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये इमेज को छोटा कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इमेज को छोटा कर देता है, इसलिए बहुत दूर से आने वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो भी हमको छोटे करके दिखाई देते हैं। एंड इसीलिए इन मिरर्स पर लिखा हुआ एक चीज होती है, वो पढ़ी है आपने कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जितनी दूर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल रियल में उससे कहीं पास में होगा, ऐसा लिखा होता है मिरर्स के ऊपर, है ना। सो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को आपके पास नजीक लाके छोटा करके दिखा देता है ताकि हम जो ड्राइवर होता है वो ट्रैफिक को इजीली गेस कर सके। एंड बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड एट द गेट एंड इन द स्क्वायर्स। ये शॉप्स में बड़े बड़े इस तरह के मिरर्स यूज किए जाते हैं ताकि जो स्पेस होता है दुकान का स्पेस वो बहुत बड़ा करके दिखाया जा सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उससे बनने वाले इमेजेस एंड उनके यूजेस। वन मोर थिंग, अब इम्पोर्टेंट थिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए एंड कैलकुलेशंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन साइंस एंड उनके कन्वेंशंस। ऑरेंज कलर का बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको अच्छे से। इसके अंदर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। मैथ्स आता है आपको? हाँ, ग्राफ पढ़ा है मैथ्स में? ठीक, तो मैथ्स में अगर इस ग्राफ की स्टडी की जाए तो अगर सेंटर पार्ट जहां पर इस मिरर का पोल दिखाई दे रहा है तो इस जगह से जो साइन है वो कौन कौन सी होंगी, लेट अस सी। अगर मिरर का पोल P काउंट किया जाए तो इस पोल से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। एक्स एक्सिस की बात करो, एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर पे P लिखा हुआ नहीं है आप वहां पर P लिखो। मिरर का जो पोल है वो एक्स एंड वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं मिरर के पोल पर, राइट डाउन देयर P एज पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अब इस पोल से अगर आप एक्स एक्सिस पर राइट साइड में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पर कौन सी साइन लेंगे आप, प्लस की माइनस? इट विल बी ऑलवेज अ प्लस साइन। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। Let us discuss all these things within 5 minutes because time is running out. Time out हो जाएगा अभी। So, है ना, राइट साइड पर जितने भी डिस्टेंस लेंगे that will be positive and opposite to it, पोल से एक्स एक्सिस पर ही लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे those will be of negative sign, नेगेटिव होंगे। क्लियर? मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं। नाउ अगर इस फोकस से इस पोल से y एक्सिस पर ट्रैवल करें तो y एक्सिस पर जितना अपवर्ड जाएंगे दैट विल बी आल्सो, वो डिस्टेंस भी सब पॉजिटिव काउंट होगा। y एक्सिस पर ऊपर की तरफ आप डिस्टेंस मेजर करोगे दैट विल बी पॉजिटिव एंड y एक्सिस पर डाउनवर्ड अगर जाएंगे तो वहां जितना भी डिस्टेंस मेजर करने का होगा ऑल विल बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो इसी अगर आप इस एक्स एक्सिस को इमेजिन करो कि ये अगर मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के फोकस की बात करें, ठीक, तो कॉन्केव मिरर जो होता है इस कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है ये मिरर के अंदर की तरफ ही होता है। देखना पीछे टर्न करके, तो जो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है उस फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेना पड़ता है।
ओके, क्योंकि ये जिस सर्कल से कटा है उसके अंदर की तरफ ही उसका फोकस आता है। तो फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव साइन, ठीक। एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इसका फोकस, यही देखो पेज नंबर 124 पर ही दोनों फोकस दिखाए हैं। 124 पर जो ऊपर कॉन्केव मिरर है डायग्राम नंबर ए में, दैट इज कॉन्केव मिरर, एंड उसका फोकस देखो है लेफ्ट साइड में है, मिरर से लेफ्ट साइड में बना है ना। तो अगर यहां से इसको साइन, कार्टेशियन साइन में अगर देखने जाओ तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव काउंट करनी पड़ेगी ना तेजस्वी ने, आ रहा है समझ में? फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर नहीं आ रहा? कंपेयर करो बोथ द डायग्राम, डायग्राम गिवन ऑन पेज नंबर 124 पर जो 11.14 डायग्राम है, एंड 125 पेज पर हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन साइन की, प्लस साइन एंड माइनस साइन की, ठीक है। तो जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या मेजर करेंगे हम? P से लेके F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर कॉन्केव मिरर के लिए मैथ्स के फॉर्म में, ग्राफ में अगर आप रख के इसकी वैल्यू को मेजर करो तो P से F मेजर करोगे तो दैट विल बी काउंट एज नेगेटिव वैल्यू ना। अगर वो P से F तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो मैथमेटिक्स में दिस विल बी काउंट एज -5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? क्लियर? एंड सेम फॉर C, नीचे वाले के लिए देखो आप 11.14 डायग्राम में। नाउ दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस है, ये जो है ये पिंक एंड ब्लू लाइन जा रही है ना, एक्चुअल में उस तरफ है, तो उसका फोकस देखो राइट साइड में आ रहा है, आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अगर राइट साइड में आ रहा है तो उसकी फोकल लेंथ मेजर करेंगे। अब सपोज इसकी फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो फोकल लेंथ तो +5 सेंटीमीटर हो गई ना। हुआ? अब क्लियर हुआ? ठीक है। सो फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, मींस माइनस वैल्यू, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज ऑलवेज टेकन विद प्लस वैल्यू। प्लस एंड माइनस का मतलब ये है कि खाली लेफ्ट साइड जाके मेजर करना और राइट साइड जाके मेजर करना है, ग्राफ अपना मैथ्स वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको ऑब्जेक्ट के साइज भी मेजर करने होंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी साइज हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर उस इमेज की बात करेंगे तो इमेज अगर उल्टी बन रही है तो हम नेगेटिव मेजर करेंगे ना उसको। कॉन्केव मिरर में अभी हमने बहुत सारे इमेजेस ऐसे